Class 12th, lesson number 11, the rightful inheritors of the earth के आज हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड व्हाई? लेखक को कौन सी चीज ने सुरक्षित अनुभव कराया और क्यों? आंसर, the author became the owner of a tiny little piece of land. It was a 2-acre plot with coconut palms, so he felt secure. लेखक भूमि के एक छोटे टुकड़े का स्वामी बना। यह नारियल के वृक्षों से भरा 2 एकड़ का प्लॉट था, इसलिए उसने सुरक्षित अनुभव किया। क्वेश्चन नंबर 2, हु वर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म? खेत पर आने वाले पहले मेहमान कौन थे? आंसर, दे वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। वे पक्षी व तितलियां थे। क्वेश्चन नंबर 3, write 2 ways in which the crows irritated the author. वे 2 तरीके लिखो जिनमें कौओं ने लेखक को नाराज किया। आंसर, the crows made loud and rough sound and they swooped down on the chicks. This irritated the author. कौवे एक तो कर्कश आवाज करते थे व छोटे पक्षियों पर झपटते थे। इससे लेखक नाराज हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, what similarities did the hawks share with the crows? बाज कौओं से किस तरह समानता रखते थे? आंसर, the hawks perched on the coconuts with the same intent, that is, they too swooped down on the chicks. वे भी कौओं की तरह छोटे पक्षियों पर झपटते थे। क्वेश्चन नंबर 5, what was the majestic creature that the author encountered? कौन से जादुई प्राणी से लेखक का सामना हुआ? आंसर, the majestic creature that the author encountered was a cobra snake. वह जादुई प्राणी एक कोबरा सर्प था। क्वेश्चन नंबर 6, how did the author react to his wife's complaint that the fruits were being consumed by birds and mammals? लेखक ने अपनी पत्नी की इस शिकायत पर कि नारियल के फल पक्षियों तथा स्तनपायी प्राणियों द्वारा खाए जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया दी? आंसर, the author said, God Almighty has created a variety of things for His creatures. Don't you think we should remind ourselves that birds, beasts, and insects too are entitled to the produce of the earth? लेखक ने कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने प्राणियों के लिए विभिन्न वस्तुएं सृजित की। क्या तुम यह नहीं सोचती हो कि हम अपने को याद दिलाएं कि पक्षी, पशु व कीड़े मकोड़ों का भी धरती की पैदावार पर उतना ही हक है जितना मनुष्य का? क्वेश्चन नंबर 7, how did the author justify the killing of rats? चूहों को मारने को लेखक ने किस तरह सही सिद्ध किया है? आंसर, he said that it is very unfortunate that rats have to be killed
so that we can live. We need a scientific method, a novel idea that will make it possible for us to live without killing other creatures. उसने चूहों को मारने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वह कहता है कि एक वैज्ञानिक पद्धति, एक नए विचार की जरूरत है कि किस प्रकार मानव प्राणी अन्य प्राणियों को मारे बगैर जिंदा रहें। Question number 8. What were the consequences of poisoning the rats in and around the house? घर के अंदर व बाहर चूहों को जहर देने के परिणाम क्या हुए? Answer: the consequences were that in 4 days 5 hens, 12 squirrels, 200 rats and a cat were killed. Dead rats rotted in the attic. The bad smell spread all over the house. परिणाम हुए कि 4 दिनों में 5 मुर्गियां, 12 गिलहरियां, 200 चूहे व 1 बिल्ली मर गए। मृत चूहे अटारी में सड़ गए। दुर्गंध सारे घर में भर गई। Question number 9. Why did the poisoning not stop tender coconuts to fall? चूहों को जहर देने से भी कोमल नारियलों का गिरना क्यों न रुका? Answer: it was because the culprits for falling of tender coconuts were not rats, क्योंकि कोमल नारियलों के गिरने के दोषी चूहे नहीं थे। Question number 10. How did the author react to his wife's suggestions of buying a gun? लेखक ने अपनी पत्नी के बंदूक खरीदने के सुझाव पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? आंसर: It was found that bats were the culprits. His wife suggested that a gun should be bought. The author was against this suggestion. He said, the gun is a symbol of cruelty. It is the child of sin. Man should never have invented. यह पाया गया कि चमगादड़ दोषी हैं। लेखक की पत्नी ने सुझाया कि चमगादड़ों को मारने के लिए बंदूक खरीदी जाए। लेखक उस सुझाव के विरुद्ध था। उसके अनुसार बंदूक क्रूरता का प्रतीक है, वह पाप का पुत्र है। अच्छा होता मनुष्य उसका आविष्कार ही न करता। Question number 11. What was the cousin's remedy for ridding the farm of bats? चमगादड़ों से मुक्ति के लिए लेखक की पत्नी के चचेरे भाई का सुझाव क्या था? Answer: the cousin said that there was no point in shooting the bats at that spot. On a little islet nearby, at least 3,000 bats live on 2 banyan trees. He would finish them off in 2 or 3 days. चचेरे भाई ने कहा कि चमगादड़ों को यहाँ मारना फिजूल है। पास के द्वीप पर बरगद के वृक्ष पर 3,000 चमगादड़ रहते हैं। वह उन्हें वहां 2-3 दिन में मार डालेगा। Question number 12. How were the bats saved? चमगादड़ कैसे बच गए? Answer: when author's wife and her cousin went to shoot the bats, about 100 people armed with lethal weapons surrounded them. They threatened to kill them if they shot at the bats. They believed that bats were the souls of their ancestors. The wife and cousin had to come back. Thus, the bats were saved. जब लेखक की पत्नी व उसका चचेरा भाई चमगादड़ों को मारने गए तो वहां करीब 100 आदमियों ने, जिनके पास घातक हथियार थे, उन्हें घेर लिया और कहा कि वे उन्हें मार डालेंगे यदि उन्होंने चमगादड़ों को गोली मारी। वे विश्वास करते थे कि चमगादड़ उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। Question number 13. What conclusion did the author derive
आफ्टर द इंसिडेंट एट द स्लेट। द्वीप की घटना के बाद लेखक ने क्या निष्कर्ष निकाला? आंसर: द ऑथर कंक्लूडेड that bats are one among God's many creations. Let us be satisfied what we get after they have taken their share. They certainly have a right to coconuts. They too are Almighty's creation, as are the palms. Remember the ancient right that God bequeathed all living beings are the rightful inheritors of the earth. लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चमगादड़ भी ईश्वर की कई रचनाओं में से एक है। उनका भाग वे ले लें, फिर जो बचे हमें उसमें संतुष्ट होना होगा। उनका भी नारियलों पर अधिकार है, वे भी उस सर्वशक्तिमान की कृति हैं। प्राचीन ईश्वरेच्छा को याद करो, सभी प्राणी पृथ्वी के अधिकार पूर्ण वारिस हैं। सभी छात्र अपनी कॉपी में क्लास 12th के लेसन नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखिए और इन्हें याद करिएगा। थैंक यू।